Rita Selakoti, and I'm from Narayanagar Government Postgraduate College, Narayanagar, Pitharagar. And in this presentation, we're going to talk about eukaryotic chromosome, their chemical composition, their structure, all about the genes, the supercalling model, the nucleosome model, etc. Means every basic thing about eukaryotic chromosome. So let's start. This one is the first slide that depicts how the chromosome fits inside the nucleus of the cell. Every eukaryotic cell or a prokaryotic cell, they have a chromosome there. And in eukaryotic cells, basically, there is ample amount of chromosome because eukaryotic cells are more complex, so they need more proteins, and more proteins means the precursor should be good in amount. That's why the more chromosomes, so more that mean this is the cell. Inside the cell there is a nucleus, and inside the nucleus there is ample amount of chromosome. And chromosomes are nothing but the very coiled structure of DNA, right? And this thing that I'm telling you, these things are very basics. So these arms that you can see here, these are called chromatid. I'm talking the morphology of the chromosome here. These are the chromatids. This center part is centromere, and these terminal parts are called the telomeres. And in coming slides, you'll see how the centromeres and how the telomeres are specific in themselves. Okay, so the next slide. This slide is much more microscopic kind of. This diagram, this shows the microscopic structure, microscopic view of the chromosome, and this is a simple computer made diagram. So here's the comparison, that how the real chromosome looks like and how the man-made the picture that is look like. This one thing is, these are the telomeres. These terminal parts are telomeres. These are the chromatids. Okay, then this is the centromere in between parts, and these are the telomeres. And euchromatin and heterochromatin are there. Means the dark band of chromosomes, these are called the heteromeres, and the light bands of chromatin is called euchromatin. Now the next slide. This is what you need to know basically if you want to get more information about the chromosome, more information about the genes. And in this slide, I'm going to tell you everything about basic things about the genes, because if you do not know better about the genes, then you couldn't be able to understand about how the DNA are able to transcript and translate and everything about the protein synthesis. So you need to know about genes. तो फर्स्टली दिस इज ह्यूमन जीनोम. अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूक्रोमैटिक क्रोमोजोम की. तो यूक्रोमैटिक क्रोमोजोम में हम ह्यूमन के जीन के बारे में बात कर रहे हैं. अब हमने सिर्फ जीन का नाम क्यों लिया सीधे सबसे पहले, क्योंकि डीएनए जो होता है, डीएनए एक बहुत लंबा थ्रेड की तरह आप उसको सोच लीजिए, और इस थ्रेड के छोटे छोटे से पार्ट्स, इनको हम जीन बोलेंगे. तो जब तक आप जीन के बारे में नहीं जानेंगे तो पूरा डीएनए के बारे में नहीं जान पाएंगे, और डीएनए के बारे में नहीं जान पाएंगे तो आपको क्रोमोसोम के बारे में समझ में नहीं आएगा. दैट्स वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. तो हम बात करते हैं जीन की. देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है, यहाँ पर जो ये पाई चार्ट है ये बनाया गया है ह्यूमन जीनोम का. ह्यूमन जीनोम में जो जितने भी टाइप के जीन्स होते हैं, वहाँ पे जितने भी डीएनए का एक लंबा सा जो टुकड़ा है,
उसमें कितना पार्ट ऐसा है जो सच में प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, कितना पार्ट ऐसा है जो बिल्कुल भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता, कितना पार्ट ऐसा है जो यूज़फुल है और कितना पार्ट ऐसा है जो यूज़फुल नहीं है, उसके बारे में ये पाई चार्ट बनाया गया है। तो अब इसको ध्यान से देखिए आप, अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें, इट्स नॉट जूमिंग आउट, ओके देन, तो इसको आप इस तरह से देखिए कि सिर्फ 1.5% जो पार्ट है वो प्रोटीन कोडिंग है। मतलब सिर्फ आपके जीनोम का सिर्फ 1.5% पार्ट प्रोटीन को कोड कर सकते हैं। बाकी ये इतना पार्ट, लगभग आधा हिस्सा आपके जीनोम का, मैं ह्यूमन जीनोम की बात कर रही हूँ, तो ह्यूमन जीनोम का लगभग आधा हिस्सा जो है वो ट्रांसपोजोन से मिल करके बना हुआ होता है। ठीक है, तो ट्रांसपोजोन्स होते हैं बेसिकली ऐसे जीन्स जो इनको हम जंपिंग जीन्स भी बोलते हैं। ये कुछ सीक्वेंसेस होते हैं इनके पास, कुछ बेस पेयर्स होते हैं इनके पास। वो बेस पेयर्स ऐसे होते हैं कि ये प्रोटीन सिंथेसिस अगर कर भी पाएँ तो ऐसे प्रोटीन्स बनाते हैं जो इनको ही एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए मदद करते हैं, सिर्फ इतना ही। ये ह्यूमन के मेटाबॉलिज्म में कोई हेल्प नहीं करते, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, शिफ्ट होने के लिए ही सिर्फ इनका यूज़ होता है। और ट्रांसपोजोन को हम न्यूक्लियर पैरासाइट भी कहा जाता है। अब ट्रांसपोजोन भी सिन और लिन दो तरीके के होते हैं। सिन जो हैं ये क्या होते हैं, ये छोटे मॉलिक्यूलर बेस वाले होते हैं, जैसे 100 से 300 तक। और जो लिन्स होते हैं ये थाउजेंड्स में इनके बेस पेयर्स काउंट होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इंट्रॉन्स की। इंट्रॉन्स क्या होते हैं, देखिए अगर आपके पास इतना लंबा एक टुकड़ा है जीन का, तो इसमें से इतना सिर्फ पार्ट, ये वाला जो ब्लैक, जिसको अभी हम ब्लैक कर रहे हैं, और इतना पार्ट इसको लगा लें हम, इसको भी हम ब्लैक कर रहे हैं। तो ये जो ब्लैक वाले पार्ट्स हैं, अगर ये पार्ट्स प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे एक्सॉन्स। ठीक है, EXONS एक्सॉन्स, वो एक्सॉन वाला एक्सॉन नहीं है ये, तो EXONS एक्सॉन्स। और ये जो होते हैं जो प्रोटीन कोड नहीं करते, हालांकि ये बेस पेयर के बने होते हैं, लेकिन इनके बेस पेयर ऐसे होते हैं जो किसी भी तरह का कोई प्रोटीन कोड नहीं करते हैं, तो इनको हम इंट्रॉन्स बोलते हैं। और ये इंट्रॉन्स जो होते हैं ये बिल्कुल, आप जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है तब ये बहुत ज़्यादा इंटरप्ट करते हैं mRNA बनने के लिए। तो mRNA क्या होता है, फिर जब mRNA बनता होता है तो इन इंट्रॉन्स की स्प्लिसिंग हो जाती है, इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है और जो एक्सॉन्स के टुकड़े होते हैं उनको वो जुड़ते हैं और फिर जाकर के mRNA का जो है सीक्वेंसिंग बनती है। उसके बाद mRNA बाहर जाके प्रोटीन बनाता है, बाहर जाके इन द सेंस कि साइटोप्लाज्म में जाके प्रोटीन बनाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि ह्यूमन का, ये तो हमने बता दी कि प्रोटीन कोडिंग जो जीन्स होते हैं वो सिर्फ 1.5% होते हैं, लेकिन अगर आप इंट्रॉन को लगा करके ये देखें, इंट्रॉन को इंक्लूड करके अगर आप देखते हैं कि कितना हिस्सा DNA का जो है प्रोटीन जो है वो जीन कहलाएगा, उसको आप सिर्फ 30% कह सकते हैं, क्योंकि इंट्रॉन्स को भी आप जीन का हिस्सा माना जाता है। इसलिए ये सिर्फ 30%, मतलब पूरे जीनोम का जो है सिर्फ 30% ही ये जो है कोड कर पाता है। बाकी आधा हिस्सा, जैसा मैंने बताया, इतना पूरा ये दिखाया गया आपको, आधा हिस्सा तो सिर्फ ट्रांसपोजोन्स ही कवर कर लेता है। तो ये भी किसी काम, ट्रांसपोजोन्स भी किसी काम के नहीं है, इंट्रॉन्स भी एज इन किसी काम के नहीं होते। तो सिर्फ 1.5% ही आपके जीनोम का ऐसा हिस्सा होता है जो आपके काम के प्रोटीन्स बनाता है। इसके अलावा जितना हिस्सा बच जाता है, अब मैं बात कर रही हूँ इतने हिस्से की, ये जो हिस्सा बच जाता है ये कई टाइप के सीक्वेंसेस बनाता है। ठीक है, सीक्वेंसेस जैसे पहला सीक्वेंस ये है, पहला सीक्वेंस हमने देखा 3%, देखिए सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स। ठीक है, इसे SSR भी बोला जाता है, SSR। ये SSR बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन हालांकि ये वो वाले प्रोटीन नहीं बना रहे जो आपके बॉडी को की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है, बट ये कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाते हैं
या फिर कुछ ऐसे टर्मिनल ऐसे ऐसे बेस पेयर्स होते हैं जो कि क्रोमोज़ोम को उसका शेप देने के लिए यूज़फुल होते हैं। ये भी आपको आगे पता चलेगा। फिर आते हैं सेगमेंट डुप्लीकेशंस, फिर आते हैं लॉन्ग रिपीटेटिव सीक्वेंसेस, सेंट्रोमेयर्स, ठीक है, सेंट्रोमेयर्स एंड टेलोमेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मिसलेनियस यूनिक सीक्वेंसेस। तो टोटल मिला के इतना पार्ट आपकी जीनोम का बाकी चीज़ें करने के लिए यूज़ होता है। ट्रांसपोजोन्स तो सिर्फ किसी ऐसा जितना इम्पोर्टेंस उनका होता नहीं है। बाकी बचा आपका सिर्फ इतना हिस्सा जो कि प्रोटीन को कोड कर रहा है। दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, ठीक। मतलब ये है कि आपके सेल में, एक सेल में जितना डीएनए है उसका सिर्फ 1.5% पार्ट ही रियल मायनों में आपका प्रोटीन को कोड कर रहा है, यानी कि प्रोटीन बना रहा है, ठीक है। अब जो ये नीचे वाला डायग्राम है इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है कि आपका जो 1.5% जो पार्ट है प्रोटीन जो बन रहा है उसका भी कितना पार्ट आपका कौन कौन से प्रोटीन्स बना रहा है। देखिए 3% तो आपका साइटोस्केलेटन बनाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पार्ट जो है वो एंजाइम बना रहा होता है, क्योंकि हमको पता है कि आपकी पूरी बॉडी को चलाने के लिए एंजाइम्स दीज आर वेरी यूज़फुल। आफ्टर दैट एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर्स आपके बनते हैं, इम्यून प्रोटीन्स बन रहे हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बन रही हैं, न्यूक्लिक एसिड बाइंडिंग्स बन रहे हैं, रिसेप्टर्स बन रहे हैं, ट्रांसपोर्ट वाले प्रोटीन्स बन रहे हैं, रेगुलेशन, ठीक है, और सिग्नलिंग, जो सेल सिग्नलिंग के लिए जो मेम्ब्रेन में जो भी प्रोटीन्स लगी रही होती है वो प्रोटीन्स बनती हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है आपके, ये बता रहा है ये डायग्राम कि आपका जीन जो कि धीरे धीरे करके आपको बाद में क्रोमोसोम बनाएगा, तो वो किस तरह से आपके प्रोटीन को कोड करे। तो ये जीन के बारे में है सारी चीज़ें। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, दिस वन, ये देखिए जो जिसकी हम बात कर रहे थे कि टेलोमेयर्स की, एसएसआर की बात चल रही थी हमारी, एसएसआर, सिंपल सीक्वेंस रिपीटर्स। सिंपल सीक्वेंस रिपीटर्स ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के सीक्वेंसेस होते हैं, जैसे पिछले अभी स्लाइड में बताया हमने। ये जो बेस पेयर्स होते हैं, ये बेस पेयर्स इनके काफ़ी कम होते हैं, मतलब ये अंडर 100 के रेंज में होते हैं। और बेसिकली ये सेंट्रोमेयर और टेलोमेयर, क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर और टेलोमेयर वाला हिस्सा बनाते हैं एसएसआर, ठीक है। तो एसएसआर क्या, ये जो क्रोमोसोम्स जब बन रहे होते, जब कॉइलिंग हो रही होती है, तो एसएसआर वाला हिस्सा, these are tend to be possess the telomeric position of the chromosome. That's why these are called the telomeres. And then centromeres. Here is a trick for remembering that you have to remember about the suffix mer. Where the suffix mer comes, that mean there is a sequence of SSR. ठीक है, टेलोमेयर एंड सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर मतलब सेंटर वाला हिस्सा, टेलोमेयर मतलब टेल वाला हिस्सा। तो टेल वाला हिस्सा और सेंटर वाला हिस्सा, ये दोनों के दोनों हिस्से बनते हैं आपके सिंपल सिंगल रिपीटर्स के थ्रू, ठीक है। तो अब यस, ये एक स्ट्रक्चर है बेसिक आपका जीन का ही, जो कि ये बता रहा है कि कितने सारे इंट्रॉन्स हो सकते हैं और कितने सारे एक्सॉन्स हो सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि क्रोमोसोम जो है, यूकैरियोटिक जो क्रोमोसोम होता है, वो जितनी हायर स्पीसीज़ होती हैं ऑर्गेनिज्म की, उतना ही उसमें इंट्रॉन्स का जो पोजेशन होता है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे एक ये वाला जीन है, ये है ओवेल्ब्यूमिन जीन, एक ये एग का एक जीन होता है, तो एग बनाने वाला एक जीन होता है। तो इसमें क्या है, देखिए ये भी इंट्रॉन है, इसका ये भी इंट्रॉन है, ये भी इंट्रॉन है, ये भी इंट्रॉन है। तो इंट्रॉन का जो एरिया है वो ज़्यादा है रादर देन एक्सॉन, और ये स्पेसिफिक फीचर है। और वैसे ही जैसे हीमोग्लोबिन की 20 सब यूनिट, इसमें सिर्फ ये वाले हिस्से जो हैं ये ही सिर्फ एक्सॉन्स हैं, बाकी सारे
इंट्रॉन्स है। तो जितनी ज़्यादा यूकैरियोटिक सेल जितनी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी या फिर जितनी हाइट की तरफ बढ़ती जाएगी पोजीशन वाइज, उतना ही उसके जीन में इंट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे rather than exons. Right, now the next one. So these are some points about the chromosomal basics. So the genes are the segments of DNA, and genes are the segments of chromosome that contain information of a functioning polypeptide or RNA molecule. और मैनी जीन देखिए, इंट्रॉन और एक्सॉन्स के बारे में बताया गया है. ओनली अबाउट 1.5 ऑफ ह्यूमन जीनोमिक DNA encodes the protein, that's I already told to you. एंड इसके अलावा repeated sequences of various type, there are very different kind of repeated sequences, and SSR that I told to you, this is could say more specific, we can say, because these made centromeres and telomeres, which are a very important structure of any of the chromosome. ठीक है, this one is the last point, centromeres and टेलोमेर्स. तो टेलोमेर्स एंड सेंट्रोमेर्स के बारे में बताया गया, बोला गया है कि यहाँ पे जो फंक्शनिंग है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है. देखिए, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम हैव 2 इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिक फंक्शन रिपीटेटिव DNA सीक्वेंसेस. फर्स्ट वन इज सेंट्रोमेयर में वो सीक्वेंस मिला दिखता है आपको, और टेलोमेर्स में दिखता है. एंड देन this one, this is a very common kind of structure of chromosome that you can find anywhere in the Google, and this depicts you that how the chromosomes coil. ठीक है, how the DNA basically coil and made the and makes the क्रोमोसोम. सो दिस वन इज़ द DNA. ये DNA है, ये कॉइल होता जा रहा है, और होते होते इसने क्या बना दिया, इसने क्रोमोसोम बना दिया. तो क्रोमोसोम जो इसने बनाया हुआ है, इसका जो एक ऑथेंटिक डायग्राम, ये सिंपली एक जो ये वाला डायग्राम है, ये सिंपली एक गूगल से लिया हुआ डायग्राम है. तो जो डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, दैट आई वांट टू मेक यू see, that is very rare, and this one is the diagram basically that I want to make you see. This is a very old handmade diagram, और ये आपको गार्डनर या फिर क्लग की बुक, किसी एक बुक में से मिलेगा ये. एंड गार्डनर आई गेस ये आपको अभी इंटरनेट पे भी अवेलेबल नहीं है, PDF नहीं मिल रहा है उसका. बट इफ़ यू वांट टू, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो पॉज करके इस डायग्राम को बना सकते हैं. दिस इज़ द अल्टीमेट डायग्राम इन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से. एक अल्टीमेट डायग्राम है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा सुपर कॉइलिंग मॉडल के लिए. नाउ लेट मी डिफाइन यू फर्स्टली व्हाट इज़ सुपर कॉइलिंग मॉडल. जब हम क्रोमोसोम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो हमें एक्चुअली पढ़ना क्या है कि ये जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है क्रोमोसोम का, अल्टीमेटली ये कैसे आपके पास आ रहा है, कहाँ से बन करके आ रहा है. तो सबसे पहली चीज़ ये बन रहा है आपका DNA से. अब मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि DNA जब बहुत ज़्यादा कॉइल हो जाता है तो वो क्रोमोसोम बना देता है. लेकिन ये कॉइलिंग जिसकी मैं बात करें, जिसको हम यही डायग्राम जिसे हम सुपर कॉइलिंग मॉडल बोलते हैं, तो ये सुपर कॉइलिंग है, ये इतनी ईजी नहीं होती. ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जो इस डायग्राम के थ्रू आप बहुत आराम से सीख सकते हो. तो हम पहले बात कर रहे हैं इस डायग्राम की. यह है एक सुपर कॉइलिंग मॉडल ऑफ DNA. तो सबसे पहले आप यहाँ से देखिए, आपको सबको पता है दैट DNA हैव अ डायमीटर ऑफ 2 नैनोमीटर. हियर इज रिटन, व्हेन DNA कॉइल्स अराउंड एन ऑक्टोमर ऑफ H1 प्रोटीन. ठीक है,
अब इसी डायग्राम से आपको डीएनए के क्रोमोसोम के केमिकल कंपोजिशन के बारे में पता चल जाएगा। आपको पता है कि ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है एक डीएनए। अब डीएनए जब यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो कि 2 नैनोमीटर विड्थ है उसकी, जब वो एक तरह की हिस्टोन प्रोटीन के ऑक्टोमर के बाहर अपने आप को सराउंड करता है। देखिए ये आपका है डीएनए, ठीक है। यहीं पर न्यूक्लियस में पाए जाते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। अब हिस्टोन प्रोटीन्स कितने तरीके के होते हैं? एक तो होता है H1, एक होता है H2A, एक होता है H2B, थर्ड वन इज़ H3 एंड फोर्थ वन इज़ H4, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम, ये हिस्टोन्स होते हैं। अब आप फिलहाल H1 को हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि H1 सिर्फ लिंकर डीएनए के साथ जुड़ता है, बाकी ऑक्टोमर वो नहीं बनाता। तो फिलहाल हम H1 को आप जस्ट फॉर सेक ऑफ लर्निंग इसको थोड़ी देर के लिए आप अपने दिमाग से हटा दीजिए। फिलहाल हम देख रहे हैं डीएनए। तो डीएनए जो है यहाँ पर इसको बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन्स मिले। अब हिस्टोन प्रोटीन्स क्या करते हैं, आपस में एक ऑक्टोमर बना लेते हैं। ऑक्टोमर यानी कि 8 हिस्टोन प्रोटीन्स, 8 मॉलिक्यूल हिस्टोन प्रोटीन्स के वो आपस में मिल जाते हैं और उस ऑक्टोमर के बाहर पे, जैसे ये दिखाया गया है, इस ऑक्टोमर के बाहर पे जो डीएनए होता है वो अपने आप को ऑक्टोमर को कवर करता है। खुद डीएनए ऑक्टोमर को आकर के कवर करता है और ये जो कवरिंग होती है ये लगभग 146 बेस पेयर्स की होती है, ठीक है। यानी कि इस ऑक्टोमर को कवर करने के लिए एक राउंड मतलब 1.7 जो है राउंड वो लगाता है। एक राउंड, फिर आधा राउंड और आधा राउंड से थोड़ा सा और ज़्यादा राउंड जो है डीएनए लगाता है इस ऑक्टोमर के बाहर। और ये क्या करता है, उसके बाद जो है ये इसे फिर ऑक्टोमर के बाद ये डीएनए फिर आगे की तरफ बढ़ता है। तो जब आगे की तरफ बढ़ता है तब इसको जाकर के एक H1 हिस्टोन प्रोटीन मिलती है और हिस्टोन प्रोटीन को भी के साथ ये लिंकअप हो जाता है, उसको कवर नहीं करता, उसके साथ लिंकअप हो जाता है और फिर दूसरे ऑक्टोमर के ऊपर फिर से 1.7 का राउंड लगाता है। फिर से उतने राउंड में 146 जो उसके बेस पेयर्स लगते हैं उतना राउंड करने में, और फिर से वो एक लिंकर डीएनए के साथ जुड़ता है। मतलब एक लिंकर डीएनए जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ता है और फिर से ये ऑक्टोमर को ऐसे कवर अप करते रहते हैं। अब जो ये ऑक्टोमर होता है, ठीक है, ये ऑक्टोमर को जब डीएनए कवर कर रहा होता है तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ये देखिए लिखा हुआ है, ये क्या है, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम जो है ये 6 नैनोमीटर थिक होता है, ठीक है। 6 इंटू ये 11 नैनोमीटर, सॉरी ये 11 नैनोमीटर का जो है एक डिस्क बना लेता है। 11 नैनोमीटर की जगह पहले डीएनए जो 2 नैनोमीटर का था, अब जब इसने कवर किया जो हिस्टोन प्रोटीन्स के ऑक्टोमर को, और वो हिस्टोन प्रोटीन्स कौन सी थी, H2A, H2B, H3 और H4, इसके दो मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक ऑक्टोमर बनाया उन्होंने। और उसके बाद जो डीएनए ने जो है उसको रोल अप करा। रोल अप करने में उसके 146 जो है बेस पेयर्स यूज़ हुए और जो वो चक्कर लगाता है ऑक्टोमर के बाहर वो होता है एक चक्कर, और आधा चक्कर से थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि 1.7 जो है राउंड लगाता है। तो इतना सब कुछ करने में जो डायमीटर बनता है जो उस ऑक्टोमर के बाहर उस डीएनए का, वो होता है 11 नैनोमीटर। और इसका नाम उस समय रख दिया जाता है न्यूक्लियोसोम, और इस पूरे मॉडल को न्यूक्लियोसोम मॉडल भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए ये जो हिस्सा है उसी को यहाँ पे जूम कर दिया गया। अब ये जो न्यूक्लियोसोम्स बने हैं, अब ये धीरे धीरे और ज़्यादा कॉइल हो जाता है, क्योंकि इसका नाम ही सुपर कॉइलिंग मॉडल है, क्योंकि एक बार डीएनए पहले कॉइल होता है, फिर से कॉइल होता है और उसके बाद फिर से कॉइल होता है और होता चला जाता है तब तक जब तक वो एक बड़ा सा क्रोमोसोम ना बना दे। इसलिए ये तो पहले राउंड की क्या थी, कॉइलिंग थी। अब दूसरे राउंड में जो है ये सोलेनॉइड बनाता है। सोलेनॉइड क्या होता है कि जितने भी ऑक्टोमर्स, जितने भी न्यूक्लियोसोम्स इसने बनाए हैं, उन न्यूक्लियोसोम्स का एक रोजेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि ये है,
जो कि है ये वाला, ठीक है। ये रोजेट लाइक स्ट्रक्चर देखिए, जैसे ये यहाँ पर को तो दो दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पर कुछ 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 जो है ये आप मतलब ये एक रोजेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो उतना स्ट्रक्चर बनाने में 6 जो न्यूक्लियोसोम्स हैं वो आमने सामने आ जाते हैं। और सेम चीज़ रहती है, बीच में हिस्टोन प्रोटीन्स होता है H1 लिंकर वाला, और न्यूक्लियोसोम का कोर बन जाता है, डीएनए, ये सब लिंकर डीएनए वगैरह यही सब चीज़ें। उसके बाद ये भी कई राउंड घूमता रहता है। अब इसके बाद क्या होता है कि अब जो डीएनए है, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा ये कॉइलिंग हो चुकी है, तो आपने नोटिस किया होगा कभी भी किसी चीज़ को आप जब बहुत ज़्यादा कॉइल कर देते हो तो वो चीज़ लूपिंग करने लग जाती है, खुद से ही लूपिंग। अब लूपिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। लूपिंग मतलब जिगजैग मोशन में। कॉइल्ड है आपका डीएनए, अभी इस कंडीशन में कॉइल्ड है, सोलेनॉइड मॉडल में कॉइल्ड तो वो है, लेकिन अब इससे ज़्यादा कॉइलिंग करने के बजाय अभी इसमें लूपिंग फॉर्मेशन होने लग जाती है। लूपिंग यानी कि इस तरह से देखिए, जिगजैग मोशन, ये देखिए यहाँ पे लूपिंग फॉर्मेशन हो रही है। अब जो ये लूप है ये धीरे धीरे और ज़्यादा लूपिंग करता है और ये बना देता है क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। क्रोमेटिन जो कि आपको नॉर्मल किसी भी क्रोमोसोम में दिखाई देगा जब वो डिवाइड नहीं हो रहा होता है, तब क्रोमोसोम आपका क्रोमेटिन फॉर्म में ही होता है। मतलब आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमेटिन फॉर्म में ही होता है। क्रोमोसोम तो सिर्फ मेटाफेज कंडीशन पे आपको दिखाई देता है। तो ये बना लिया इसने क्रोमेटिन फाइबर। लेट मी इरेज दिस, ठीक है। तो ये क्रोमेटिन फाइबर बना दिया। अब क्रोमेटिन फाइबर का जो डायमीटर होता है वो होता है 300 नैनोमीटर। तो अभी यहाँ से देखिए, सबसे पहले आपका डीएनए 2 नैनोमीटर था, फिर ये 11 नैनोमीटर के न्यूक्लियोसोम में कन्वर्ट हुआ, फिर 11 नैनोमीटर का न्यूक्लियोसोम इसने फिर से रोजेट लाइक स्ट्रक्चर बनाया, 6 न्यूक्लियोसोम मिल करके बनाते हैं जिसे, और इसका डायमीटर, इसको हम सोलेनॉइड मॉडल बोलते हैं, और सोलेनॉइड जो होता है वो 30 नैनोमीटर डायमीटर होता है। अब जब सोलेनॉइड की भी जब बहुत ज़्यादा लूपिंग हो जाती है तो फिर वो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर बनाता है जो कि 300 नैनोमीटर डायमीटर का होता है, ठीक है। तो मतलब इसकी डेंसिटी और थिकनेस धीरे 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 करके बढ़ती जा रही है। अब इसके बाद जो है क्रोमेटिन फाइबर्स में फिर से और ज़्यादा लूपिंग हो जाती है और ज़्यादा कॉइलिंग हो जाती है। तो अब ये क्या बना देता है आपका, अब ये क्रोमोसोम बना देता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर का हिस्सा आपको पूरा दिखाई दे रहा है ये क्रोमोसोम वाला हिस्सा है, और इसकी जो ये आर्म्स दिखाई दे रही है, एक आर्म जो होती है इसकी 700 नैनोमीटर थिक होती है। तो दोनों आर्म्स मिल करके ये 1400 नैनोमीटर थिक जो है क्रोमोसोम बना देता है। और ये क्रोमोसोम बेसिकली मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ये कब दिखता है, वेन एवर योर सेल गेट्स इनसाइड द सेल डिवीज़न फेज। एंड सेल डिवीज़न के भी कौन से फेज में, मेटाफेज वाली कंडीशन में ही आपको यू कैन सी द क्रोमोसोम। अदरवाइज इफ द सेल इज इन रेस्टिंग पोजिशन, इट इज़ नॉट डिवाइडिंग, देन यू कुड सी ओनली एंड ओनली द क्रोमेटिन। क्रोमेटिन इज़ अ वेरी डेंस, वेरी मच डेंस मटीरियल दैट आपको पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ पर कुछ है भी, वो इतना ज़्यादा डेंस होता है। So this was all about the chromosome structure. This one is the very famous, the very important, and the very basic and complicated too structure of chromosome. So this was all. Thank you so much.